welcome to my channel. Today I am starting chapter 1 of class 12, which is sexual reproduction in flowering plants. All flowering plants show sexual reproduction. Now we begin with 1.1, which is flower, a fascinating organ of angiosperm. ह्यूमन बींग्स के लिए फ्लावर एक इंटीमेट रिलेशनशिप शो करता है, बहुत ही पहले टाइम से, याद भी नहीं है. फ्लावर एक ऑब्जेक्ट है, एस्थेटिक, सोशल, रिलीजियस और कल्चरल वैल्यू का. इसको कुछ ह्यूमन बींग्स ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये कन्वे करता है फीलिंग्स को, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग, सब तरह से. अब टिपिकली जो बायोलॉजिस्ट होते हैं उनके लिए फ्लावर्स इज नॉट अ थिंग ऑफ सेंटिमेंट. इट इज़ object, not even an object. You can say that flowers represent embryological and morphological marvels inside of reproduction for biologists. Now the 1.2 we start with is pre-fertilization structure and events. तो जनरली प्लांट्स में दो पार्ट्स होते हैं, ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड सेकेंडली फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, विच इज़ gynoecium and androecium. Androecium is the male reproductive organ and gynoecium is the female reproductive organ. Now we will go with firstly let us see the diagram of ileus of a flower. A flower generally consists of stigma, anther, petals, filaments, sepal and a style. These are anther. Anthers are bilobed in structure. Anthers have two lobes, okay, and this is a filament. Now we will go with 1.2.1, which is stamen, microsporangium and pollen grains. So there are two parts of typical stamen, a long and cylinder stalk which is called filament, जो मैंने आपको भी बताया एंथर से निकल रही है लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं, और टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर which is called anther. This is bilobed structure which is called anther. These are two parts of stamen, anther and filament. Bilobed means divided into or having two lobes. The proximal end of the filament is attached to the thalamus or the petal of the flower. आपने देखा है जो फिलामेंट है ये यहाँ पे कनेक्ट हो रही हैं, जितने भी फिलामेंट्स हैं वो यहाँ पे कनेक्ट हो रही हैं. ये जो है हमारा थैलेमस है या फिर पेटल ऑफ अ फ्लावर, ठीक है. नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन आर वेरिएबल इन ईच डिफरेंट फ्लावर स्पीशीज. ओके, नाउ दे आर अ टिपिकल angiosperm. Anther is bilobed with each lobe having two theca. They are called diathecious. Okay, तो एंथर जो है हमारा एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है विच इज़ एंजियोस्पर्म, विच इज़ बाइलोब्ड इन स्ट्रक्चर हैविंग टू थेका, ईच लोब हैविंग टू थेका. बाइलोब मीन्स टू लोब and two lobes having two theca. They means they are diathecious. Okay, and a longitude groove runs lengthwise separating the theca, which is filament. The bilobed nature of anther is very distinct and transverse section of the anther. Anther is a four-sided tetragonal structure consisted of four microsporangia located at the corner, two in each lobe. So now see, the anther is bilobed in structure having two theca. Two theca means each लोब में फोर थेकाज हो गए, एक ईच लोब में टू थेका है. अब इन टू थेकाज के अंदर भी हम क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं. जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं फिर वो फर्दर डेवलप हो जाते हैं पॉलन सेक्स में. ये हमारे पॉलन सेक्स हैं जिनके अंदर पॉलन ग्रेन्स स्टॉक होते हैं. ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, टू थेका ईच में है, और थेकास के अंदर जो है हमारे पॉलन सेक्स
हैं और उनके अंदर पॉलन ग्रेन्स हैं, ठीक है। द एक्सटेंडेड लॉन्गिट्यूडनल ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एंथर एंड आर पैक्ड विद पॉलन ग्रेन। पॉलन सेक्स क्या करती हैं, पॉलन ग्रेन्स को पैक करे रखती हैं। And now we will go with the structure of microsporangium. In transverse section and typical microsporangium appear near circular in outline, surrounded by 4 wall layer: the epidermis, endothelium, middle layer, and the tapetum. The outer 3 wall layers perform the function of protection and help in dehiscence of anther to release the pollen grains. So अब क्या बताया गया, माइक्रोस्पोरेंजियम की जो ट्रांसवर्स सेक्शन होता है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम आउटलाइन रिप्रेजेंट करता है नियर सर्कुलर आउटलाइन की जो है माइक्रोस्पोरेंजियम है, जो आपको आउटलाइन दिख रही है पॉलन सेक्स के बाहर। तो इसमें लेयर्स होती हैं, दिस इज 4 वॉल लेयर्स। फर्स्ट होती है द एपिडर्मिस, सेकेंड होती है द एंडोथीशियम, फिर आती है मिडल लेयर एंड लास्ट इज टेप्टम। टेप्टम इज द इनर मोस्ट लेयर। सो जो आउटर 3 वॉल्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं प्रोटेक्शन का फंक्शन और हेल्प करती हैं डिहाइसेंस of anther to release the pollen. Dehiscence means the process when a mature flower anther, the pollen bearing structure splits and open its pollen grains, और उसके बाद रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। द innermost layer is tapetum. Tapetum's function is to nourish the developing pollen grains. जब pollen grains nourish हो जाएंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा उन्हें, वो डेवलप हो जाएंगे प्रॉपरली, उसके बाद ही तो डिहाइसेंस होगा, उसके बाद ही तो आगे स्टार्ट होगा फंक्शन कि अभी आएगी वो उसके पार्ट्स में वो एंजियोस्पर्म ट्रैवल होगा। तो देयर इज़ अ साइकिल, ठीक है। सेल्स ऑफ टेप्टम पोसेस डेंस साइटोप्लाज्म and generally have more than one nucleus. Tapetum have more than one nucleus and have a dense cytoplasm. When anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called sporogenous tissues occupies the center of each microsporangium. ओके, तो जो एंथर जब यंग होता है तो होमोजीनियस सेल्स अरेंज होती हैं एक ग्रुप में और ऑक्यूपाई करती हैं सेंटर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम विच इज़ स्पोरोजेनस टिश्यूज। अब आता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एज एंथर डेवलप द सेल्स ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यूज अंडरगो माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्रेड। टेट्रेड जब फॉर्म हो जाता है, अब आप डायग्राम देखिए, पहले आप लेयर्स देखिए। द इनर मोस्ट लेयर tapetum and the next layer, and inside the tapetum there is sporogenous tissues, then the endothelium, then epidermis, and in the center is connective. The middle layer is this, and now we will go with the topic. As each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad, each one is potential pollen or microspore mother cell. हर एक सेल जो माइक्रोस्पोरेंजियस टिश्यू की होती है वो कैपेबल होती है कि वो माइक्रोस्पोर टेट्रेड बन सकती है। हर एक में पोटेंशियल है कि वो पॉलन में या माइक्रोस्पोर मदर सेल में डेवलप हो सकती है। ये जो फॉर्मेशन, ये जो प्रोसेस है फॉर्मेशन माइक्रोस्पोर से पोलन मदर सेल्स का थ्रू मेयोसिस, इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर्स फॉर्म होते हैं, अरेंज होते हैं क्लस्टर्स में 4 सेल्स की, जिसे हम माइक्रोस्पोर टेट्रेड बोलते हैं। जैसे ही एंथर मैच्योर होता है, डिहाइड्रेट होता है, माइक्रोस्पोर डिसोसिएट हो जाते हैं एक दूसरे से और डेवलप हो जाते हैं पोलन ग्रेन्स। Inside each microsporangium, several thousand microspores or pollen grains are formed that are released with the dehiscence of anther. Next is pollen grains. Pollen grains represent the male gametophytes. Okay, if you touch the open anther of hibiscus or any flower, you would find deposit of yellowish powdered pollen grains on your finger. सो आपने हिबिस्कस का फ्लावर देखा होगा जिसमें फिलामेंट निकलता है, उसके बाद एंथर होता है बाइलोब स्ट्रक्चर में येलोइश कलर का, और जब आप उसको टच करते हैं या थोड़ा सा भी ट्विच करते हैं उसको,
तो क्या होता है कि आपके हाथ पे भी येलोइश पाउडर लग जाता है, तो वो हमारे पोलन ग्रेन्स होते हैं. नाउ the pollen grains generally spherical, measuring about 25 to 50 micrometer in diameter. It has a prominent two-layered wall. अब क्या होते हैं pollen grains में के अंदर क्या होते हैं prominent two-layer wall होती है. The hard outer layer is exine and the inner wall of the pollen grains is intine. There are two layers. First one is exine, which is the hardest outer layer, and the inner layer is intine. राइटिंग थोड़ी ऐसी ही है, प्लीज़ आप लोग समझ जाइएगा क्या लिखा हुआ है. It can withstand high temperature and strong acid and alkaline. No enzyme that degrades sporopollen is so far known. Pollen exine has prominent aperture called germ pores where sporopollen is absent. ओके, तो अब आपको क्या बताया है इसमें कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनमें दो लेयर्स होती हैं. पहले तो पोलन ग्रेन्स 25 to 50 माइक्रोमीटर उनका डायमीटर होता है. पॉइंट टू रिमेंबर, इट हैव टू लेयर. द हार्डेस्ट लेयर एक्साइन, जहाँ पे हमारा स्पोरोपोलन प्रेजेंट होता है. ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ स्पोरोपोलन, जो बहुत रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है. अभी तक ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है कि जो डिग्रेड कर पाए स्पोरोपोलन को. ये हाई टेम्परेचर विदस्टैंड कर सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और एल्कलाई के साथ भी ये वर्क कर सकता है. तो कोई भी डिग्रेड नहीं कर सकता. अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है डेवलप. पोलन ग्रेन्स की जो एक्साइन होती है उसमें जो उसके अंदर एक अपरेटस होता है जिसको हम जर्म पोर्स कहते हैं. ठीक है, ये जो जर्म पोर्स होते हैं यहाँ पे स्पोरोपोलन एब्सेंट होता है. ठीक है, पोलन ग्रेन्स प्रिजर्व किए जा सकते हैं फॉसिल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलन. नाउ द इनर वॉल, द एक्साइन एग्जिबिट अ फैंटासाइजिंग एरे ऑफ पैटर्न एंड डिज़ाइंस. ये सब मैंने आपको बता दिया है. अब हम चलते हैं इंटाइन की तरफ. इंटाइन इज द इनर वॉल. इट इज़ थिन एंड कॉन्टीन्यूस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन. Made up of cellulose and pectin. The exine is made up of sporopollen and the intine is made up of cellulose and pectin. Cytoplasm of pollen grains is surrounded by plasma membrane. जो cytoplasm होता है intine का pollen grains का, वो एक plasma membrane से surrounded होता है. जब pollen grains mature हो जाते हैं तो उनमें two cells होती हैं, एक vegetative cell और एक generative cell. Okay, the vegetative cell is the bigger one and has an abundant food reserve and a large irregular shaped nucleus, and the generative cell is small and floats in the cytoplasm of the vegetative cell. It is spindle shaped with dense cytoplasm and nucleus. इंटाइन क्या होता है? इंटाइन हमारे इनर मोस्ट लेयर है, एक थिन और कॉन्टीन्यूस लेयर है जो सेलुलोज और पेक्टिन से बनी हुई है. जो साइटोप्लाज्म होता है पोलन ग्रेन्स का, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंड होता है. जो पोलन ग्रेन्स होती हैं जब मैच्योर हो जाती हैं तो उनके अंदर दो सेल जनरेट हो जाती हैं. फर्स्ट वन इज़ वेजिटेटिव एंड द सेकेंड वन इज़ जनरेटिव सेल. जो वेजिटेटिव सेल है वो बहुत बिगर है, उसके अंदर बहुत सारा फूड रिजर्व है, लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस है. और जो जनरेटिव सेल है वो स्मॉलर साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती है वेजिटेटिव सेल की. स्पिंडल शेप है और डेंस साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है इसका. ठीक है, इन ओवर 60% एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन्स शेड हो जाते हैं टू सेल स्टेज में. और जो रिमेनिंग स्पीशीज़ होती हैं जनरेटिव सेल डिवाइड हो जाती है माइटोटोटिकली, जिससे दो मेल गैमेट्स फॉर्म होते हैं बिफोर पोलन ग्रेन शेड, which is three celled stage. Pollen grains have many species, cause several allergies and bronchial affiliation in some people, often leading to chronic respiratory disorders which is asthma and bronchitis. It may have mentioned that parathenium or carrot grass that become into India as a contaminant with imported wheat has become
ubiquitous and occult and cause pollen energy. Now what is pollen energy? जब pollen grains shed होते हैं या फिर कुछ भी, कितने species हैं ऐसे flowers की जिनके pollen grains जो हैं ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज कर देते हैं, जिन्हें हम पॉलन एलर्जीज कहते हैं, जैसे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस, ये सब होता है। अब आप ये डायग्राम देख लीजिएगा, ये एक पॉलन ग्रेन का टेट्रिड का डायग्राम है, जो फर्स्ट वन है, और जो सेकंड वन है ये स्टेजेस है माइक्रोस्पोर की कि कैसे पॉलन ग्रेन्स फॉर्म हो रहे हैं, कैसे ये सेल वेजिटेटिव और जेनेटिव सेल में डिवाइड हो गई हैं। Now pollen grains are rich in nutrients. It is also used as food supplement. इनकी टैबलेट्स भी जनरेट की जाती हैं जो फूड सप्लीमेंट्स में यूज़ होती है। इससे जो है जो स्टेमिना होता है वो इंक्रीज़ होता है। एथलीट्स और रेस हॉर्सेस में इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, ये परफॉर्मेंस इंक्रीज़ कर देती हैं, इसलिए कुछ लोग पॉलन टैबलेट्स भी लेते हैं। When once they are shed, pollen grains have to land on the stigma before they lose their viability if they have to bring out fertilization. अगर fertilization होना है तो जो pollen grains हैं उनकी viability लूज़ होने से पहले वो stigma पे land होने चाहिए। Pollen grains remain viable in highly variable and to some extent depends on the prevailing temperature and humidity. Humidity and temperature are the two things that affect viability of pollen grains. pollen grains कब तक वायबल रहेंगे ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड होता है। जब तक pollen grain वायबल हैं, वो स्टिग्मा पे जाके लैंड हुए हैं तो फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सम सीरियल्स में क्या होता है कि pollen grains अपनी विदिन 30 मिनट वायबिलिटी लूज़ कर देते हैं जब वो रिलीज़ होते हैं, ठीक है। एंड कुछ मेंबर्स हो गए रोजियस और सोलेनेंस, इन सब के जिनमें वायबिलिटी मंथ्स तक रहती है कि एक मंथ तक पोलन ग्रेन्स को कुछ नहीं होगा, उनकी वायबिलिटी कुछ लूज़ नहीं होगी। अगर वो विदिन अ मंथ भी अगर शेड होके सेल उस पर स्टिग्मा पे लैंड होते हैं तो भी फर्टिलाइजेशन ओकर होगा, ठीक है। पोलन ग्रेन्स की जो टैबलेट्स होती हैं उनको लार्ज अमाउंट ऑफ स्पीशीज ईयर्स के लिए स्टोर किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में एट टेम्परेचर ऑफ -196 डिग्री सेल्सियस। ये स्टोर पोलन ग्रेन्स यूज़ होते हैं पोलन बैंक्स में, सिमिलर टू सीड बैंक्स इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम कल कवर करेंगे विच इज़ द पिस्टल माइक्रोस्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियो सेल। थैंक यू एंड